Okay, students, today we are going to study chapter 8, body movements. Okay, so this is the second part of body movements. So let us start with the first topic, which is rib cage. Okay, so what is rib cage? Rib cage is basically जो आपके यहाँ पे chest पे है, ठीक है ना? So that is known as rib cage. Fine. अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने rib cage को, so you can just touch your own chest. Touch your own chest. Quickly touch your own chest. अपने chest को touch करिए. And when you will see, तो आपको कुछ हड्डियां feel होंगी, right? So that is your rib cage. And you can see in this diagram also, ये आपका chest part है. ये इसके अंदर आपके lungs होते हैं. And in this you have your heart. And from here your stomach and everything starts. So this is your chest part, which is known as rib cage. So ribs join the chest bone and backbone together to form a rib cage. ये वाले जो bones हैं और ये वाली bone है और ये वाली bone है जो पीछे जाके इस लंबे backbone को touch करती है, this is basically known as rib cage. It provides protection to important internal parts of our body. ओके, तो दैट मीन्स ये क्या करती है, ऑब्वियसली इसके अंदर जो जो चीजें होंगी उसको वो प्रोटेक्ट करेगा. तो इसके अंदर क्या क्या होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है, राइट, विच इज बीइंग प्रोटेक्टेड. ओके, तो नेक्स्ट इज योर बैकबोन. अभी हमने पढ़ा ना कि आपका जो चेस्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैकबोन से. कैन यू सी दिस पार्ट जिसमें रेड रेड लाइट जल रही है, दिस इज योर बैकबोन स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक टू द हिप पार्ट. ठीक है ना? This is an X-ray of a backbone. Can you see? Right. So this is a backbone. You can see that it is made up of many small bones. बहुत छोटे छोटे bones से बना हुआ है. You can see this is one part, this is one part, this one is another part, right? This one is another part. So these are the small bones from which this backbone is made up of. Okay. And the rib cage is joined to these bones. You can see in this diagram कि ये पीछे है, एक इंसान का पीछे है, ये आपका बैक है, राइट? तो ये फ्रंट से ये रिब केज ऐसे आ रही है और जुड़ रही है ना? ये फ्रंट से ऐसे रिब केज आ रही है, गोल करके जुड़ रही है, राइट? तो ऐसे करके जुड़ रही है. सो दिस इज द पार्ट वेयर द रिब केज बोन्स कनेक्ट. सो एंड इन दिस वी हैव स्मॉल बोन्स विच इज नोन एज वर्टिब्रे. तो बैकबोन में जो आपका ये जो बोन है, ये जो आपका बैकबोन है, इसका एक एक पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया. सो दीज आर द स्मॉल बोन्स. तो ईच स्मॉल बोन इज नोन एज वर्टिब्रे. व्हाट इज इट नोन एज? वर्टिब्रे. लेट मी शो यू दिस विद द पेन. सी दिस होल पार्ट, ये एक बोन है, ठीक है? दिस होल पार्ट इज अ बोन. दिस इज नोन एज vertebrae. Okay, this is known as vertebrae. This whole part is known as vertebrae. Okay, so एक एक बोन को हम vertebrae बोलते हैं. I think you are clear with this. Now let us proceed further, which is a shoulder bone. Okay, in the shoulder bone you can see that ये आपका शोल्डर है. यू कैन टच योर शोल्डर. आप अपने शोल्डर को टच कीजिए थोड़ा हार्ड, एंड यू विल फील द बोन्स कनेक्टेड. So basically this is a what type of joint it is? It is a ball and socket joint, as I have discussed in the previous class. But you can see, wait a minute, but you can see that in shoulder bones you have 3 bones connected together. 1, 2, 3. So what kind of joint it is? It is a compound joint. मैंने आपको बताया था ना कि compound joint का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 bones से ज्यादा होते हैं. So this is the shoulder bone. So you can see this is your collar bone, जिसको clavicle बोलते हैं. This is your arms bone,
which is the scapula, and this is your humerus. You no need to learn these names, just try to understand. This is your arm bone which is being connected to this socket. This socket is known as scapula, and this is your collarbone. So this three bones together make your shoulder bone, and here is your ball and socket joint. Now let us come to pelvic bones. ये आपकी हिप बोन है, ये आप देख सकते हैं. दिस इज योर हिप बोन. आप अगर अपने हिप को भी टच करेंगे थोड़ा सा हार्ड, तो आपको ये बोन्स की फीलिंग्स आएगी, ठीक है ना. तो दिस इज योर पेल्विक बोन. हिप बोन को क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन. पेल्विक हिप बोन को पेल्विक बोन बोला जाता है. यू कैन सी दिस कर्व एंड दीज टू आर योर फ्यूमर. फ्यूमर मतलब जो आपका लेग है उसका जो ऊपर का पोर्शन का बोन है उसे. तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया. ये वाला आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एंड बाकी ये सारा मिला के पेल्विक बोन बनता है. आप अपनी बॉडी में भी इसे देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे आपका रिब केज है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी दिस इज योर बैकबोन एंड इट इज कनेक्टेड टू योर रिब हेयर, राइट. एंड इस तरह से इट इज कनेक्टेड टू योर पेल्विक हेयर, एंड इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, right. So they enclose the portion of the body below the stomach. So this is basically a portion which is below your stomach. Stomach आपका यहाँ होता है, तो ये वाला बोन आपका स्टमक के नीचे है. So this is known as your pelvic bone. Now come to skull. Okay, skull आपको पता है जहाँ इसके अंदर ही आपका ब्रेन होता है, right. You can see that it is made up of many bones joined together. एक साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे बोन्स. कैन यू सी दीज क्रैक्स? दिस इज वन बोन. जो एक क्रैक है पूरा जो बाउंड्री है, दिस होल थिंग is one bone. This whole thing is one bone. This whole thing is one bone, and you can see it is connected and it cannot move. So it's a fixed joint, right? जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. And it is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, which is the brain. This skull protects which thing, which is brain inside, right? जो brain है उसको ये skull protect करता है. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने सर को ऐसे नॉक करके देखिए, आपको आवाज आएगी, है ना. That is your bone. Now let us come to next thing, which is a cartilage. हमने पहले बोन्स के बारे में पढ़ा, अब हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे. कार्टिलेज इज बेसिकली अ बोन, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बोन्स विच वी हैव रेड नाउ. लाइक पेल्विक बोन हमने पढ़ा, शोल्डर बोन पढ़ा, स्कल पढ़ा. इससे थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज कार्टिलेज इज नॉट हार्ड एट ऑल. ये हार्ड नहीं होता. आप अपने कान को पकड़िए और मड़ोड़िए, कान को फोल्ड करने की कोशिश कीजिए. डू इट. व्हेन यू विल डू इट तो आपको लगेगा ये इजीली फोल्ड हो रहा है, कोई पेन तो हो नहीं रहा. व्हेन यू आर रोलिंग इट और यू आर फोल्डिंग इट, तो आपको पेन नहीं हो रहा. सो दैट इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ बोन विच इज नॉट हार्ड. इट इज फ्लेक्सिबल एंड यू कैन बेंड इट वेरी इजीली. So these are not as hard as the bones and can be bent easily, and it is also very flexible. You can see your ear is a earlobe. This is the outer part of the ear. So this is cartilage. आप अपने नाक के ऊपर की टिप को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पिचकार सकते हैं थोड़ा सा, है ना. इजीली आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, आपको पेन नहीं होगा. So that is also a cartilage. और आपकी जो टंग है, टंग को भी आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं ना. So that is also cartilage. Now let us come to muscles. बेटा देखिए, जो आपके बोन्स हैं उसको वर्क करने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है. बोन्स अपने आप काम नहीं कर सकते, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, एंड दैट सपोर्ट इज गिवन बाय मसल्स. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है और उसके ऊपर इस तरह से मसल्स डिजाइंड है भगवान के थ्रू, ठीक है ना. देखो हर चीज में मसल डिजाइंड है, ठीक है. तो एवरी बोन इज हैविंग टू मसल्स, ठीक है. एवरी बोन इज हैविंग टू मसल्स विच हेल्प इट टू मूव. So you can read in this that muscle is a soft tissue found in most animals. Muscles help bones to move, okay, and
What muscles is made up of? It is made up of protein. So this protein helps in contraction and relaxation of your muscle. Contraction का मतलब क्या होता है? जब वो सख्त हो जाता है, और relax का मतलब क्या होता है? जब वो खुल जाता है, right? So the function of the muscle help in force and movement. Now let us have the function of muscle. कि muscle काम कैसे करता है, right? So let us I am telling you. You can see this part. जैसे ये आपका आर्म है, तो यहाँ पे दो मसल्स हैं. एक ऊपर वाले को हमेशा हम बाइसेप बोलते हैं, नीचे वाले को हम ट्राइसेप बोलते हैं. तो जब आपने अपना हाथ फोल्ड किया, जस्ट फोल्ड योर आर्म, जब आपने अपना हाथ फोल्ड किया तो आपका बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, फूल गया. एंड जो आपका ट्राइसेप है वो रिलैक्स हो गया, राइट. लेकिन जब आपने अपनी आर्म खोल दी तो आपका जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो आपका बाइसेप है वो रिलैक्स हो गया. इस तरह से काम होता है, राइट. एंड यू कैन सी दिस इज योर एल्बो जॉइंट. So I am repeating it how the muscle is functioning here. You can see that जब आपने अपना आर्म क्लोज किया, मतलब आपने अपना हाथ उठाया, ऐसे मोटा कर दिया, तो आपका जो ऊपर वाला मसल है विच इज अ बाइसेप मसल, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फूल जाएगा. और जो नीचे वाला मसल है विच इज अ ट्राइसेप, इट विल रिलैक्स. बट इन दिस व्हेन यू ओपन योर आर्म और आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे अपना हाथ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का जो पोर्शन है बाइसेप, दैट विल रिलैक्स, और जो नीचे का ट्राइसेप है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है ना. So this is how the working of muscle happens. Now let us have gait of fish. Gait का मतलब क्या होता है? Gait का मतलब होता है any pattern by which the animal is moving. ठीक है, कोई एनिमल रेंगते हुए जा रहा है तो वो उसका गेट है. अगर आप अपने पैरों से चलते हैं तो वो हमारा गेट है, राइट. दिस इज GAIT गेट, इट्स नॉट GATE गेट, ओके. So it's a gait, मतलब how which pattern, in which pattern you are moving. Fishes का movement अलग होता है, bat का movement अलग होता है, giraffe का movement अलग होता है, ठीक है. उसी तरह से हर एक animal का movement होता है. But we need to only learn fish and snake, okay. We are only going to learn the movement of fish and snake. So first of all, what is gait? It is written over here that it is known to be a pattern of movement by animals. Second is in fish. You can see the muscles from the front part. यहाँ पे muscles होते हैं. From the front part of the body, curve it to one side and tail part moves to the other side. Okay. So this makes a jerk and pushing the body forward. मतलब यहाँ पे जो muscles होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं. जब वो घूमे हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. So this is how the fish move. And this also helped by fins and tail, okay. The fins and tail also help in the movement. And tail क्या help करता है? Tail make the body of the fish stable in the water. Otherwise वो सीधा सीधा मूव नहीं कर पाएगी, और if it wants to change the direction तो वो अपने tail की help लेती है, tail की help लेती है. And in the fish you have a streamlined body, okay. You have a streamlined body in fish. And streamlined body का मतलब क्या होता है कि आप आगे का जो पोर्शन है उसको छोटा कर ले, ठीक है. आपका मुंह का जो पोर्शन होगा वो पॉइंटेड होगा, और जो पीछे का पोर्शन होगा वो आपका ब्रॉड होगा, राइट. So that is known as streamlined body. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा streamlined body के बारे में. And the fins in the fish help you to move also, right. So let us see the gait of snake. This is a skeleton of a snake. Can you see? There are so many small bones attached to one single bone, right. So they cannot stand, they always crawl. और वो इतने easily crawl कैसे कर लेते हैं? Because of these very small bones. अगर इनका कोई एक straight bone होता तो ये move नहीं कर पाते, ठीक है ना. इनके बहुत small bones होते हैं, as you can see in this picture. So that is why they have a flexible movement, okay.
So this is how the snake moves. So snake mostly crawl, and their bone is made up of very small vertebrae bones which helps in flexible movement, right? So like this the snakes help. Okay, right.